Welcome students in my YouTube channels. Today we start the first chapter of your syllabus, that is the reproduction in organisms. So first thing, I hope that all of you know about them. What is the reproduction? Okay, listen. Reproduction is one of the fundamentals characteristic of living organisms. And when we define about the what is the reproduction is a biological process in which the organisms reproduce young ones similar to the parents. Okay, so this is known as the reproductions. नॉर्मली जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो in case of reproductions there is the normally transfer of genetic characters which are transferred from parent to the offspring. Okay, that is clear. रिप्रोडक्शन के थ्रू जो पेरेंट्स के करेक्टर हैं दैट इज ट्रांसफर इनटू द न्यू ऑफ स्प्रिंग्स. सो दैट इज क्लियर. आई होप दैट ऑल ऑफ यू व्हाट इज द रिप्रोडक्शंस. So next thing, that is what is the purpose of the reproductions. क्या पर्पज है रिप्रोडक्शन के. First, we say that continuity of species means reproduction maintain the continuity of species. Okay, just like you see here, that is given some points importance of reproductions. First one, it is an essential life process which not only helps in survival but also helps in continuity of that race and group immortality. That is clear. I hope that this point is clear. Second point, young ones replace that old and dying ones. जो यंग वंस होते हैं किसको रिप्लेस करते हैं. ओल्ड वन, क्योंकि ओल्ड के बाद क्या है, दे आर डेड. ठीक है, तो उस गैप को ये फिलअप करते हैं थ्रू द रिप्रोडक्शंस. थर्ड वन, रिप्रोडक्शन हेल्प इन द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. रिप्रोडक्शन के थ्रू ही जो स्पीसीज की पॉपुलेशन है डे बाई डे दैट इज इंक्रीजेस एंड दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडेप्टेबिलिटीज. ओके, नेक्स्ट वन इज द वेरिएशंस थ्रू द रिप्रोडक्शंस. वेरिएशन occur in the organisms and this variation useful essential for the adaptation and evolutions. ठीक है, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ये वेरिएशन वेरी नेसेसरी है. तो हाउ कैन दैट इज द occurs due to the reproductions. That is clear. And last point, that is life exists on the earth due to the reproduction in organisms. जो लाइफ प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पर किसके कारण, ड्यू टू द ओनली द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, सो व्हाट इज द एडवांटेजेस, सॉरी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन या व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस अबाउट द reproduction act as a vehicle of organic evolution by transmission of the variation to the offspring. ओके, अभी जिसको डिस्कस किए कि जो एडाप्टेशन के लिए है वो वेरिएशन रिक्वायर्ड होती है और वेरिएशन कब आता है, थ्रू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. आई होप दैट दिस इज द क्लियर. Okay, when we start this chapter there is one point जो important है, लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन्स, तो व्हाट इज द लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट रिप्रेजेंट्स लाइफ स्पैन. ठीक है, लाइफ स्पैन क्या है,
बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच में जो ड्यूरेशन है, टाइम है, दिस इज नोन एज द लाइफ स्पैन। उस ऑर्गेनिज्म को उतनी लाइफ स्पैन है। दैट इज क्लियर। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी फ्यू मिनट्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। जो ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन है वो कुछ मिनट से लेकर के कई थाउजेंड ईयर तक भी होता है। जस्ट लाइक लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई इज 1 डे। जो मे फ्लाई होते हैं स्मॉल इंसेक्ट, उसकी जो लाइफ स्पैन है ओनली दैट इज द 1 डे। while the giant tortoise is considered the longest living animals, means near about 200 years. That is clear. Okay, in your textbook that is given the different picture with the lifespan, just like you note down if you not know about them. Just like a mayfly 1 day, butterfly 1 to 2 weeks, fruit fly 30 days, rice plant 3 to 4 months, wheat 5 months, rose 5 to 7 years, crow 15 years, banana trees 25 years, cow 20 to 25 years, dog 20 to 30 years, crocodile 60 years, horse 60 years, elephant 60 to 80 years, parrot 140 years, tortoise 200 years, banyan trees 200 years, and longest lifespan of sequoia trees, that is the 3000 to 4000 years. Okay, and this lifespan that is cannot depend on the body size, just like we discussed in previous class कि जो लाइफ स्पैन है वो बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे टार्टोइज है स्मॉल साइज का लेकिन इसकी लाइफ स्पैन 200 ईयर्स। एलिफेंट उसकी साइज बहुत बड़ी है लेकिन उसकी लाइफ स्पैन कितनी है, ओनली 60 to 80 ईयर्स। दैट इज क्लियर। ओके, तो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यू सी हियर देयर इज नॉर्मली देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स, asexual reproduction and sexual reproductions. Asexual reproduction means that is the without involvement of gametes, means the gamete is directly developed into the new offspring. This process is known as the asexual reproduction. And sexual reproduction means that is the fusion of gametes, means new offspring that is produced through the only fusion of gametes or involvement of gametes, that is known as the sexual reproductions. Today we discussed only the asexual reproductions. Asexual reproduction you see here there are different types, just like that is given the cell division के through जिसमें होता है there are 3 types: binary fusions, budding, sporulations. Second one is the fragmentation, third regeneration, fourth spore formations या spore structures जिसको हम स्पेशल स्ट्रक्चर कहते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप जस्ट लाइक ए जूस्पोर, कोनिडिया, जेम्यूल्स एंड वेस्टेटिव रिप्रोडक्शन दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सो वी डिस्कस वन बाय वन। ओके, तो वी स्टार्ट द asexual reproduction. Asexual reproduction, everyone that is clear? Asexual reproduction means that is the formation of new offspring without involvement of gamete, without fusion of gametes. Okay, the first process that is the binary fusions. Binary fusion क्या होता है? Bi means two, fusion मतलब divisions, means in binary fusion it means in this process the asexual reproduction the parents organism divide into 2 halves and each halves forming an independent daughter organisms. ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड ईच हाफ जो 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, बाई मीन्स 2, ठीक है, 2 भाग में जो डिवाइड हो रहा है उन दोनों के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। दैट इज क्लियर।
Binary fission, that is also different type, that is on the basis of plane of divisions. किस प्लेन से डिवीजन हो रहा है उस पर ये डिपेंड करता है. जैसे सिंपल बाइनरी फिजन मीन्स इरेगुलर बाइनरी फिजन. सिंपल बाइनरी फिजन मतलब उसको हम इरेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं. जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ अमीबा, बिकॉज अमीबा का कोई शेप साइज नहीं होती, इरेगुलर डिवीजन उसमें होता है. ठीक है. सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल यदि कट हो करके दो भाग में डिवाइड हो रहा है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं. जस्ट लाइक इन केस ऑफ यूग्लिना. दैट इज क्लियर. बाइनरी फिजन में सेकेंड पॉइंट इसमें आपका है, या फिजन में ही दूसरा पॉइंट है आपका मल्टीपल फिजन्स. मल्टीपल फिजन्स क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. इसमें एक ही पेरेंट बॉडी मेनी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन इन इंसिस्टेड अमीबा. जो इंसिस्टेड अमीबा है मीन्स एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है इनसाइड देम द बॉडी ऑफ द अमीबा दैट इज डिवाइडेड इनटू द मेनी in numbers. Okay. And second thing that is also you read in class 10, that is the binary multiple fissions in case of plasmodiums. And listen, here is the very important one point. जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो इसमें डिवीजन में दो प्रोसेस होता है. वन इज द कैरियोकाइनेसिस, अनदर इज द साइटोकाइनेसिस. व्हाट इज द कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस मीन्स दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सो टर्म हियर इज यूज द कैरियोकाइनेसिस. एंड सेकंड डिवीजन किसका होता है? साइटोप्लाज्म का. सो दिस इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस. दैट इज क्लियर. तो बाइनरी फिजन्स में आपके दो हो गए, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन्स. आई होप दैट दैट इज द क्लियर अबाउट देम. सेकंड वन इज द बडिंग. बडिंग क्या होता है? Budding is a asexual process in which there is the formation of bud-like structure on the parent bodies during the favorable condition that is detached from the parent bodies and developed into the new offspring. This is known as the budding process. That is clear. For example, इसकी बात करें तो budding process in case of yeast, in case of hydra, that is budding process occurs. Okay. Buddings in animals, there are two types. एनिमल में बडिंग जो है प्रोसेस दो तरह का होता है. एक होता है एक्सोजिनस एक्सटर्नल बडिंग्स, मीन्स दैट इज अकर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ईस्ट, इन केस ऑफ हाइड्रा. ठीक है. बॉडी सरफेस पर आउट ग्रोथ होती है, बड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है. फेवरेबल कंडीशन में वो डिटेच होकर न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है. तो इस तरह के बडिंग प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोजिनस और एक्सटर्नल बडिंग्स. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन इज द इंडोजिनस और इंटरनल बडिंग्स, मीन्स दैट इज बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अकर्स इनसाइड द बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल जेम्यूल्स. जो जेम्यूल्स होता है अकर इनसाइड द बॉडीज ऑफ स्पंजेस. जो स्पॉन्जिला स्पीसीज है स्पंज में, उसके अंतर्गत ये इंडोजिनस या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है जिसको हम जेम्यूल्स बोलते हैं. दैट इज क्लियर. थर्ड पॉइंट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स. जो पेरेंट बॉडी है वह दो या दो से अधिक भाग में डिवाइड हो जाता है. दिस नोन एज द फ्रेगमेंटेशंस. फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, राइजोपस, रिक्सिया. ठीक है. इन सब में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द रीजनरेशन. देयर इज अनदर प्रोसेस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन. रीजनरेशन में भी क्या होता है? पेरेंट बॉडी दैट डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट दैट इज डेवलप्ड इनटू द न्यू ऑफस्प्रिंग. This is known as the regeneration process.
नॉर्मली यू नो अबाउट देम इन केस ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन होता है, इसकी बॉडी डिवाइड होकर के जितने भाग में डिवाइड होते हैं सभी से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरोलेशंस। ठीक है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस। इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, जस्ट लाइक जू स्पोर्स मीन्स देर इज द ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी देर इज द फ्लैजला आर प्रेजेंट, उसको हम जू स्पोर बोलते हैं। बाइफ्लैजेलेटेड एंड क्वाड्रिफ्लैजेलेटेड होते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ यूलोथ्रिक्स। ठीक है, कोनिडिया फॉर्मेशंस दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ स्पोर्स दैट इज occur इन केस ऑफ पेनिसिलियम। ठीक है, दैट इज डेवलप्ड ऑन द conidiophores। Conidia that is present in the single as well as the in a chain are present. Third one is the in case of Rhizopus, स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यू सी थ्रू द डायग्राम्स। पहला हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन्स यू सी हियर अमीबा है। ठीक है, इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, फर्स्ट यू सी देन देयर इज अ न्यूक्लियस डिवीजन अकर्स मींस दैट इज द कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, दो भाग में डिवाइड हो गया, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दिस इज द साइटोकाइनेसिस। तो दिस इज द बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस, दैट इज क्लियर। बडिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट बॉडीज देयर इज द bud-like structure appears during the Farival condition, that is detached from the parent bodies and developed into the new offsprings. That is clear? Okay. Fragmentation you see here. This is the fragmentation process. ये स्पायरोगायरा के स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं, इसका बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट से बना होता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन, किसी कंडीशन में यदि ये डिफरेंट फ्रेगमेंट से डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवाइड होने के बाद ये न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, दिस नोन एज द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। हियर इज गिवन द रीजनरेशन प्रोसेस इन केस ऑफ प्लेनेरिया। यू सी द बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स and each part that it developed into the new offsprings. That is clear? Regeneration. Next one is the spore formations. You see here, in case of Rhizopus, there is the sporongiospores. इसको हम स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। जिस पर स्पोरेंजिया डेवलप करता है। ठीक है, और स्पोरेंजियोस्पोर में स्पोरेंजिया के अंदर क्या हुआ प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है फंगस का, यू नो अबाउट देम, क्या होता है, माइसेलियम। ठीक है, तो माइसेलियम पर ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और इस स्पोरेंजियोस्पोर में स्पोरेंजिया डेवलप करते हैं इनसाइड देम। क्लियर। दूसरा है आपका इन केस ऑफ पेनिसिलियम्स, कोनिडिया डेवलप्ड। यू सी हियर इज अ कोनिडिया दैट इज प्रेजेंट इन ए चेन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर होगा हमारे ख्याल से, ये दिया है जस्ट लाइक हियर इज द, और जिस पर ये डेवलप करता है उसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। ठीक है, कोनिडियोफोर पर क्या डेवलप होता है, कोनिडिया डेवलप होता है, और यह कोनिडिया सिंगल भी हो सकता है, एक चेन के रूप में भी प्रेजेंट होता है, मीन्स देयर इज मेनी नंबर ऑफ कोनिडिया आर प्रेजेंट। क्लियर। एंड नेक्स्ट दैट इज गिवन द जेम्यूल फॉर्मेशंस इन स्पॉन्जिला इनसाइड द बॉडी देयर इज बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर, दिस नोन एज द जेम्यूल्स। ठीक है, तो ये इंडोजिनस हो गया आपका, और एक्सोजिनस बर्डिंग प्रोसेस ये आपका दैट इज गिवन इन द इंडोजिनस बर्डिंग प्रोसेस। ओके,
व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसका एडवांटेजेस क्या है? किसी चीज़ का एडवांटेज होगा, ठीक, जस्ट लाइक फर्स्ट वन, इट इज़ द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। इसमें यूनिपेरेंटल की रिक्वायर्ड होती है, बाय पेरेंटल की रिक्वायर्ड नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए। सेकेंड वन, इट इन्वॉल्व सिंपल प्रोसेसेस ऑफ डिवीजन ऑफ माइटोसिस एंड एमाइटोसिस। इसमें सिंपल प्रोसेस होता है, एमाइटोसिस के थ्रू भी होता है और माइटोसिस के थ्रू भी होता है, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है? डिविजन्स डायरेक्टली, और एमाइटोसिस विदाउट डिविजन्स, that is the body part that is divided into different parts, just like we discussed about the regeneration process, fragmentations, budding process. That is clear. Third one, it is quick mode of reproduction. Normally asexual reproduction ये quickly होता है. More number of species that is directly developed from them within a few minutes, sorry, few days we developed many number of species. And fourth one and last one, a single parents may produce a large number of offspring. ठीक है, एक सिंगल पेरेंट से लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को हम डेवलप कर सकते हैं. दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ asexual reproduction. That is clear. What is the disadvantage of asexual reproduction? There is no mixing of genetic material, therefore no variation takes place. इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएशन भी नहीं हो रहा है. इफ देर इज नो वेरिएशन occurs, so means that is the there is no role of the evolutions. ठीक है, वेरिएशन do not occur as asexual reproductions, so there is no role in the evolution. evolution में भी कोई इसका रोल नहीं होगा. ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लीकेशन इट कॉजेज द ओवर क्राउडिंग. बहुत ज़्यादा नंबर में रैपिडली ग्रोथ करते हैं हम स्पीसीज को, तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीसीज डेवलप करने का वो ओवर क्राउडिंग हो जाती है. मीन्स उसके सबके लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड होगी जो फुलफिल नहीं हो पाएगा. दैट इज क्लियर. आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर everything you know about them. If you like this video, then share and press the icon buttons. Okay, thanks.